exception handling in Java. To handle the exception, there are 5 keywords: try, catch, finally, throw, and throws. Okay, so we have covered 3 keywords: try, catch, and finally. Finally block used to write the important part of the code. Finally block used to write the important part of the code. Okay. Now let's see what is the use of throw keyword. See, throw keyword is also used to handle the exception. Okay. So throw keyword used to throw an exception explicitly. Explicitly means we will define the exception. Explicitly means we will define it. Okay. The throw keyword used to throw an exception explicitly. We specify an exception object which is to be thrown. हम लोग क्या करेंगे? We will specify the object. ये कौन सा ऑब्जेक्ट थ्रो करना है? द एक्सेप्शन हैज सम मैसेज विद इट. वो एक्सेप्शन के साथ में जो एक्सेप्शन वो थ्रो करेंगे उसके साथ में सम मैसेज वी विल सेट. ओके, दैट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन. मैसेज का एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन. ओके, एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है. इट मे बी रिलेटेड टू यूजर इनपुट, सर्वर एक्सेट्रा. वी कैन थ्रो. ठीक है, क्या क्या थ्रो कर सकते हैं हम लोग? बोथ टाइप ऑफ एक्सेप्शन. कौन से? चेक्ड इन और अनचेक्ड एक्सेप्शन. We can throw both checked or unchecked exception. What is checked exception? Checked exception, it is checked at compile time. And unchecked exception, it is checked at run time. Means checked exception जो है वो compile करने के बाद पता चलता है, और unchecked exception run time पे, रन करने के बाद. ठीक, compile time पे नहीं पता चलता है. तो throw keyword जो है, it throw checked exception or unchecked exception. Okay. So it is mainly used to throw a custom exception. Custom exception के लिए let's take an example. See, for example, we can throw keyword है, okay, to throw an exception, both checked or unchecked. For example, we can throw arithmetic exception if we divide a number by another number. हम लोग क्या कर रहे हैं? एक नंबर को डिवाइड करें अनदर नंबर से. तो we can throw मतलब we can define the exception like number divided by another number. We can throw arithmetic exception. Okay, we just need to set the condition and throw exception using throw keyword. Just condition set करना है. Let's take an syntax example. क्या है? Throw, what we are writing? See, throw IO exception का example देखते हैं. Okay, throw IO exception का. This is a syntax. First line is the syntax and second line is the example. Okay, तो throw keyword use करना है. Throw, then new लिखना है. Exception कोई भी throw करने के लिए new keyword is used. Throw keyword to handle the exception. Okay, exception throw करने के लिए new keyword. Then exception class, मतलब which type of exception you are defining. Explicitly which type of exception you are defining. तो exception class के place पे you will write the exception name of exception you will write. Then जो message exception को describe करने के लिए जो message set करना है, in bracket you can pass. Okay, let's see the example of throw. Now let's see the example. ये तो था सिर्फ syntax. Okay, ये first line था syntax. Example में see, we are taking example of IO exception, input output exception. There are different types of exception, arithmetic exception, input output exception, different types के है. तो throw keyword लिखना है, new लिखना है. Throw keyword used to throw an exception. Explicitly we can define the exception by using the throw keyword. Okay, define कर सकते हैं हम लोग exception को by using the throw keyword. तो throw लिखना है, न्यू क्या एक्सेप्शन के क्लास को डिफाइन करने के लिए. देन IO एक्सेप्शन क्लास का नेम, विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इट इज. ओके, तो IO एक्सेप्शन, then in bracket we are passing the message. Whatever message you have to pass related to the exception you can write in the bracket. Sorry, device error. Okay, now see, throw keyword जो है it can throw checked exception और unchecked exception. दोनों भी exception throw कर सकते हैं, checked और unchecked.
In this example, we have created a method named validate method. Unchecked exception का example लेना. What is unchecked exception? Unchecked compile टाइम पे नहीं शो होता. कहाँ पे शो होता है? रन टाइम पे. इसका जो एक्सेप्शन है कंपाइल के बाद नहीं रिफ्लेक्ट करता है, आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम. ओके, अनचेक्ड एक्सेप्शन. So let's take an example. We are creating a method. उसका नेम है validate method. और उसमें क्या करवा रहे हैं हम लोग? That accepts an integer as a parameter. एक इंटीजर ले रहे हैं हम लोग एज ए पैरामीटर. अगर एज लेस देन 18 है, द एज इज लेस देन 18, तो क्या होना चाहिए? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए. अदरवाइज प्रिंट अ मैसेज वेलकम टू वोट. अगर एज लेस देन 18 है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन. अगर एज लेस देन 18 नहीं है तो प्रिंट अ मैसेज, एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वेलकम टू वोट. ओके, वोट कर सकते हो बिकॉज यू आर अबाउ 18. इफ यू आर लेस देन 18, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए. अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर लेस देन 18 नहीं है तो प्रिंट करना चाहिए मैसेज वेलकम टू वोट. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसके अकॉर्डिंग वी विल राइट दी प्रोग्राम बाय यूजिंग दी थ्रो कीवर्ड. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Class name we are taking, then function we are taking to check if a person is eligible to vote or not. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेथड में ले रही हूँ, वैलिडेट मेथड. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं है, वैलिडेट मेथड. इसके अंदर एक पैरामीटर में पास करूँ एज, इंटीजर में. इफ कंडीशन एज लेस देन 18, अगर एज लेस देन 18 है तो क्या करना चाहिए? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. तो थ्रो, फिर न्यू कीवर्ड, एक्सेप्शन का नेम यू हैव टू राइट. Okay, arithmetic exception and then the message related to it. Person is not eligible to vote. Else, अगर condition false हो गई, age is not less than 18, else क्या print होना चाहिए? Person is eligible to vote. Everyone is aware of how if and else block is working. Okay, just we have used throw keyword to throw an exception. We are explicitly defining the exception here by using the throw keyword. Okay. Then in the main method, we are passing the value, age value in the main method. Okay. Public static void with string argument array. Then we are calling the function in the main method of Java. The validated method we have defined here. Okay. Just we are calling here validate method, and inside that parameter the int age, so integer value you can pass. We have passed 13. Okay. Then this is just a statement. You can, it is up to you whether you have to write it or not. ठीक है, ये लाइन इसको इग्नोर भी कर सकते हो. ठीक है, इट इज जस्ट अ लाइन. ओके, प्रिंट करने के लिए. तो क्या आएगा? 13. तो 13 यहाँ पे पास हो गया, तो 13 लेस देन 18 है. 13 इज लेस देन 18, राइट. तो कौन सा वाला प्रिंट होगा? पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट. एंड ये वाला लाइन प्रिंट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड. इज इट क्लियर एवरीवन? पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट. और क्या आएगा? लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ओके, इसको रन करते. ओके, इन डी ड्राइव आई हैव सेव दिस फाइल. ओके, फाइल क्लास का नेम क्या है? टेस्ट थ्रो 1. और एक्सटेंशन क्या ऐड करना? डॉट जावा. सेव एज टाइप ऑल फाइल्स. ओके, नाउ ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, तो डी ड्राइव में वी हैव सेव द फाइल डी. आई हैव टू सेट द पाथ बिकॉज कुछ लोकेशन एरर है मेरे में.
जावा का सेट पाथ इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बीन. ओके, देन जावा सी क्लास नेम क्या है? टेस्ट थ्रो 1. ओके, टेस्ट थ्रो 1. जावा सी क्लास नेम डॉट जावा. ओके, नाउ लेट्स रन दी प्रोग्राम. रन करने के लिए सिंटैक्स क्या है? जावा क्लास नेम. Okay, we are not getting any output. Why? Java C class name dot Java. इन माई सिस्टम जावा का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, वो कंपाइल रन करने का कुछ थ्रो ही नहीं कर रहा है. अगेन आई एम ट्राइंग बट आउटपुट यू विल गेट. Set path equal to, okay, we have set then Java C class name dot Java. Java class name. Okay, we are not getting it. मेरे सिस्टम में already I have told you प्रॉब्लम है जावा का. I have to uninstall it. सिर्फ यहीं से देख लेते हैं. You will get this output 13 है ना, 13 लेस देन 18. ओके, कंडीशन ट्रू हो गया यहाँ पे. तो कौन सा आएगा? पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट. एंड देन ये वाला लाइन प्रिंट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, देखो कैसा आउटपुट आ रहा है. एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन. एक्सेप्शन कहाँ पे है? मेन थ्रेड में. ऐसा क्यों लिखा है? ये आउटपुट है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो दिखा है कमांड प्रॉम्प्ट बना हुआ है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन. ऐसा क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे हमने कोई थ्रेड, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी थ्रेड हियर. तो बाय डिफॉल्ट जावा जो है, जो मेन फंक्शन होता है वही उसका मेन थ्रेड होता है, उसी पे प्रोग्राम रन हो रहा है. ये मेन फंक्शन पे ही प्रोग्राम रन हो रहा है. पूरा एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन दिस मेन मेथड ओनली. ओके, तो इसीलिए आया है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब मेन मेथड का जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन. बिकॉज यहाँ पे मैंने थ्रो की हूँ एक्सेप्शन. ओके, तो इसलिए लिखा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये, और पूरा पैकेज के साथ में बताएगा. लैंग पैकेज में अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिफाइन है. देन उसके बाद में ये लाइन प्रिंट होगा, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट. देन ये वाला लाइन भी प्रिंट होगा, यहाँ पे दिया नहीं है, रेस्ट ऑफ द कोड. दिस लाइन विल आल्सो गेट प्रिंटेड, रेस्ट ऑफ द कोड. ओके, अच्छा, नाउ कैन यू आंसर कि ये जो प्रोग्राम है अभी मैंने बताई थी, ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन है. अगर मीनिंग समझा तो यू कैन आइडेंटिफाई ये प्रोग्राम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन है. चेक्ड मतलब जो कंपाइल के बाद में आता है, अनचेक मीन्स जो रन टाइम के बाद. तो कंपाइल के बाद कुछ यहाँ पे थ्रो हुआ है क्या? रन करने के बाद पता चला ना कि एक्सेप्शन है. कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, राइट? कंपाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है. ये प्रोग्राम जो है ये अनचेक्ड एक्सेप्शन का है. ओके, क्योंकि रन करने के बाद वी आर गेटिंग कि कौन सा एक्सेप्शन है ये. अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिफाइन किया तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है. बिकॉज थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, राइट? above code throw an unchecked exception. Similarly, we can also throw unchecked and user defined exception. See, अभी हम लोग ये देखते हैं checked exception.
अभी चेक्ड एक्सेप्शन मैंने क्या बोली थी? व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन? अ चेक एक्सेप्शन क्या है? कंपाइल के टाइम पे शो होता है। कहाँ पे? कंपाइल टाइम पे। ओके, ये प्रोग्राम देखो, सिंपल सा प्रोग्राम है ये भी। सी, चेक एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे शो होता है। लेट अस कंसीडर कि मैं एक फाइल ये कर रही हूँ, एबीसी नाम का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ओके, डेस्कटॉप पे स्टोर है, इसका लोकेशन है सी यूजर्स में अनुराती डेस्कटॉप, और उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल का नेम एबीसी है। ओके, तो लेट अस कंसीडर मुझे हाँ, ये फाइल मुझे रीड करना है। ये फाइल मुझे डेटा लिखा है टेक्स्ट फाइल में, एबीसी फाइल में, और डेटा मुझे क्या करना है? रीड करवाना है। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जहां से कंपाइल कर रहे हो और फाइल का लोकेशन दोनों अलग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तुम कंपाइल करो डी से, ठीक है, पर फाइल कहाँ पे? ई में सेव है। तो क्या क्या एक्सेप्शन थ्रो होगा? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये तो कंपाइल करते ही शो हो जाएगा, राइट? ये कंपाइल करते ही शो हो जाएगा ना कि अगर दोनों का लोकेशन डिफर कर रहा है, जहां से तुम कंपाइल कर रहे हो और जहां पे फाइल, जो फाइल तुमको रीड करवाना है, दोनों का लोकेशन डिफरेंट है। कंपाइल करते आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड। समटाइम्स तुमने ये एक्सेप्शन देख भी चुके हो, लोकेशन अलग होता है तो फाइल नॉट फाउंड आता है। तुमने डी में सेव किए फाइल को, कोई भी नॉर्मल चलो प्रोग्राम का जावा फाइल है, डी में सेव किया, ई वाले कमांड प्रॉम्प्ट में ई वाले लोकेशन में तुम कंपाइल कर रहे हो, तो क्या आता है लिख के? फाइल नॉट फाउंड, राइट? ओके, तो ये कौन सा एक्सेप्शन, तुम उसको किसमें कैटेगराइज कर सकते हो? चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन, बिकॉज वो कंपाइल टाइम पे ही शो कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चेक्ड एक्सेप्शन ना, बिकॉज वो कंपाइल टाइम पे ही शो कर रहा है। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है, फाइल नॉट एक्सेप्शन के डिफरेंट टाइप्स है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वी हैव सीन। ओके, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है, इट कम्स अंडर चेक्ड एक्सेप्शन, बिकॉज ये कहाँ पे थ्रो होता है? कंपाइल टाइम पे। पॉइंट क्लियर है सबको? ये प्रोग्राम नहीं देखेंगे, बट उसका सिर्फ ये समझो, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन। फाइल लोकेशन डिफर कर रही, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जो जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन? थ्रो की प्रोग्राम तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी है, तो वहां पे भी एक बार उसका प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम और रहेगा। यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? यू हैव टू सी थ्रोज कीवर्ड आल्सो। क्लियर है? ओके। सी, थ्रो कीवर्ड में हम लोग एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं, राइट? बट थ्रोज कीवर्ड, यहाँ पे सिर्फ एस लगा है, थ्रो और थ्रोज, ये थ्रोज है अभी। थ्रोज कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन। देन थ्रोज कीवर्ड में हम लोग ऐसा एक्सेप्शन लिखते हैं, ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट दैट देयर मे अकर एन एक्सेप्शन। सी, अगर हम लोग प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं? थ्रोज कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर जो है उसको क्या आइडिया मिलेगा? इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट कि ये टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है, दैट दे में अकर एन एक्सेप्शन। तो हमेशा थ्रोज कीवर्ड यूज करना क्या? ये इट इज बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। तो बेटर ये है कि प्रोग्रामर को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड दे दे, सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कैन बी मेंटेन्ड। अगर सी, मैं थ्रोज कीवर्ड लगा के
आई एम सेटिंग कि ये एक्सेप्शन हो सकता है, ओके, तो प्रोग्रामर विल गेट द आइडिया दैट के हाँ यस दिस इज द टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट मे अकर, so the programmer will focus on that and it will not disturb the normal flow of the program. Okay, let's see. Exception handling is mainly used to handle the checked exception. If there occurs any unchecked exception, see, checked unchecked सबको clear होगा I hope. Exception handling mainly checked exception के लिए होता है जो compile time पे show होता है, compile करते, जैसे for example file not found exception, वो checked exception में आता है, ये clear है सबको. If there occurs any unchecked exception, unchecked मतलब जो रन टाइम पे, such as null pointer exception, ये रन टाइम पे शो होगा null pointer. What is null pointer? अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट को null डिफाइन कर दिए and then वो ऑब्जेक्ट पे तुम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, are you getting this point? Let us consider a ऑब्जेक्ट है, int a equal to null. तो अभी a ऑब्जेक्ट कैसा है, null है. अभी तुम वो ए ऑब्जेक्ट को नल डिफाइन करने के बाद उस पर लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा? जो ऑब्जेक्ट को तुमने नल डिफाइन कर दी तो उस पर कोई एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं नहीं. ओके, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है? इट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन एट रन टाइम. ओके, so it is the programmer's fault that he is not checking the code before it being used. तो ये प्रोग्रामर का ही फॉल्ट है ना, उसको पता होना चाहिए कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है क्यों होता है, समझ में आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब होता है, तो ये प्रोग्रामर का फॉल्ट है, राइट, कि उसको कोड को चेक करना चाहिए था, कोड नहीं चेक हुआ इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो रहा है. ओके, तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मेनली चाइल्ड एक्सेप्शन के लिए होता है, पर अनचेक एक्सेप्शन के लिए मोस्टली यूज नहीं किया जाता बिकॉज वो प्रोग्रामर का फॉल्ट होता है, प्रोग्रामर को चेक करना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चेक एक्सेप्शन बहुत कुछ हो सकता है कंपाइल टाइम पे, लाइक सिंटैक्स एरर, वो तो सभी से हो सकता है, सिंटैक्स एरर हो गया या कुछ चेक कंपाइल टाइम पे ना उसको फाइन नहीं मिला, बहुत कुछ हो सकता है. पर अनचेक एक्सेप्शन में प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि कोई अगर नल पॉइंट एक्सेप्शन का एग्जांपल दिया है कि तुमने नल डिफाइन कर दिया देन उस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, तो ये बस कॉन्सेप्ट है. लेट्स सी थ्रोस कीवर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है अभी. ओके, ओके, नाउ सी विच एक्सेप्शन शुड बी डिक्लेयर्ड. कौन सा एक्सेप्शन हम लोग को ज्यादा कर डिक्लेयर करना चाहिए? चेक्ड एक्सेप्शन ओनली. क्यों? बिकॉज जो अनचेक एक्सेप्शन होता है वो अंडर आवर कंट्रोल, सो वी कैन करेक्ट आवर कोड. अनचेक मतलब जो रन टाइम पे आता है, जैसे रन टाइम पे क्या आता है, बहुत सारे एक्सेप्शन रन टाइम पे जो शो होते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है. जैसे नल पॉइंटेड एक्सेप्शन, ठीक है, नल पॉइंटेड एक्सेप्शन हमारे कंट्रोल में, हम लोग अपने कोड को करेक्ट कर सकते हैं. बट जो एरर है वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, जैसे वर्चुअल मशीन एरर हो गया या स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, एरर हमारे कंट्रोल के बाहर है. ओके, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. सी अभी नाउ सी थ्रोज का एग्जांपल देखो. See, let's see the example of Java throws clause which describes that check exception can be propagated by throws keyword. थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग चेक टाइप का एक्सेप्शन करें जो कंपाइल टाइम पे शो होता है. सी यहाँ से देखो, क्लास नेम, देन एक मेथड में डिफाइन करी वॉइड एम, मेथड का नेम है एम, क्या है एम, और उसके आगे थ्रोज कीवर्ड लिख के मैं एक्सेप्शन डिफाइन कर रही. थ्रोज कीवर्ड में कौन सा एक्सेप्शन लिखते हैं हम लोग? दैट में अक्कर. ओके, तो आईओ एक्सेप्शन मैंने डिफाइन की. देन थ्रोज कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेप्शन मुझे लगता है हो सकता है. ओके, देन इनसाइड इट में क्या लिख लूं? थ्रोज कीवर्ड से तो एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर कर दिए कि जो हो सकता है, तो आईओ एक्सेप्शन में आकर देन थ्रो कीवर्ड से तुम यहाँ पे मैसेज सेट कर रहे हो. ओके, थ्रो न्यू, ऐसी सिंटैक्स है ना, देन आईओ एक्सेप्शन और मैसेज जो तुमको रिफ्लेक्ट करना है, डिवाइस एरर. देन एक और मेथड में क्रिएट करी वॉइड एन मेथड, और थ्रोज इसमें लिखी मैंने आईओ एक्सेप्शन ओनली. देन एन मेथड के अंदर में क्या करी, एम मेथड को आई एम कॉलिंग. ओके, नाउ सी
वॉइड पी मेथड, पी मेथड के अंदर मैं ले रही हूँ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं हम लोग? एक और मेथड आई एम क्रिएटिंग पी, ट्राई के अंदर वो ब्लॉक लिखते हैं जो मुझे लगता है ट्राई ब्लॉक में वी आर राइटिंग कोड, एक्सेप्शन का कोड लिखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन का कोड को डिफाइन करते हैं ट्राई ब्लॉक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एन मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, एन एन वाले में, एन के अंदर एम है, ये जो एम है ना एन के अंदर अभी डिफाइन हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मुझे लग रहा है कि एन में क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, एन मेथड यहाँ कॉल करी मैंने, कैच करो अभी एक्सेप्शन है तो, एक्सेप्शन मैंने लिखी, फिर एक्सेप्शन और उसका रेफरेंस वेरिएबल ई, यानी प्रिंटिंग का स्टेटमेंट, एक कैच का ब्लॉक है, कैच ब्लॉक में एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। मेन मेथड ऑफ जावा, क्लास का ऑब्जेक्ट, टेस्ट थ्रो वन है तो उसका ऑब्जेक्ट सबको पता है कैसे क्रिएट करना है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, मेथड कौन सा कॉल करी, जहां पे ट्राई ब्लॉक डिफाइन है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करना है ना, तो पी मेथड आई एम कॉलिंग, देन ये एक नॉर्मल प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा उसका आउटपुट, कैन एनीवन, ये प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करो, एवरीवन गो थ्रू दिस प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें ये दिखा रहा है कि हाउ यू हैव यूज्ड थ्रोज कीवर्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। क्या आउटपुट आएगा, पी मेथड को कॉल किया, पी के अंदर क्या है, ट्राई ब्लॉक, एन, एन के अंदर क्या है, एम को कॉल किया है, तो एम में है क्या, आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन हो गया, एम के अंदर तो आईओ एक्सेप्शन हो गया, मतलब आईओ एक्सेप्शन हैंडल हुआ है कहीं पे, हाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, कैच ब्लॉक ने उसको हैंडल किया है, एक्सेप्शन हैंडल, तो ये वाला प्रिंट होगा, एंड देन ये वाला लाइन प्रिंट होगा, नॉर्मल फ्लो। ये प्रोग्राम में किसी को डाउट है क्या? एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करो, टू लाइंस प्रिंट होंगे, एक्सेप्शन हैंडल्ड और नॉर्मल फ्लो, सिर्फ ये दिखा रहा है कि हाउ एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, थ्रोज कीवर्ड यूज किया हम लोग ने और एक्सेप्शन कैसे उसने हैंडल किया। सपोज तुम्हारा कोई भी डिवाइस में एरर आ गया, राइट, डिवाइस में एरर आया है, तो कंपाइल करने के टाइम पे दिखा देगा कि डिवाइस में एरर है, वो लेट अस कंसीडर। तो उसके बाद वो नॉर्मल एक्सेप्शन का मतलब क्या, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिवाइस में एरर आया तो उसने एक्सेप्शन को यहाँ हैंडल कर लिया, तो ये लाइन प्रिंट होगा, और नॉर्मल पार्ट को उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ये वाला प्रिंट होगा ना। इतना तो पूरे एक्सेप्शन के बारे में था, उससे रिलेटेड था, ये लाइन को उसने डिस्टर्ब नहीं किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इफ यू आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन बाय यूजिंग कौन से कीवर्ड्स है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, तो उससे एक्सेप्शन हैंडल होता है, एक्सेप्शन हैंडल होता है मींस नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होता है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज कीवर्ड के बाद जो लाइन है वो प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबने गो थ्रू किए प्रोग्राम को, ये सिंपल प्रोग्राम है। Yeah, no one is replying. Reply fast. Only 3 minutes are remaining. पूजा, कंचन, रामजतन, अभिषेक, जैनीश, सबका नाम लूं अभी मैं? इज इट क्लियर? सी इतना ही करना है, यस और नो बोलना है, अगर कहीं क्लियर है तो यस बोलो, कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, यू कैन आस्क नाउ, आई एम गिविंग यू द टाइम, मीटिंग एंड हो जाएगा ऐसा बोलते बोलते। यस, ओके, एवरीवन इज राइटिंग यस, ओके दैट्स गुड।
So how many keywords are there? Can you answer? Now everyone answer only one question. सबको answer करना है. Reply it fast, हाँ. कितने keywords? How many keywords are there to handle the exception? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. How many keywords are used to handle the exception? कितने keywords use हो रहे हैं exception को handle करने के लिए? Yes, Rinky, right. 5 keywords are used. Try, catch, finally, throw, throws. Okay.